Hello students, today I am going to explain you our next chapter from our supplementary book Footprints Without Feet, and the name of our chapter is The Making of a Scientist. It is written by Robert W. Peterson, and as the name shows, The Making of a Scientist, it means it is telling us about the person's story who became a scientist. So let's see who that person was. Richard A. Bright has received the Searle Scholar Award and Shering-Plough Award for Biochemistry and Molecular Biology. So, from these lines we have come to know that this story is about Richard A. Bright, a well-known scientist who received the Searle Scholar Award and Shering-Plough Award for his achievements in biochemistry and molecular biology. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. So, the main thing it is mentioned here is that it was the fascination, that means attraction towards butterflies, that paved the way to make him a scientist or make him a well-known scientist. मतलब जो उनकी बटरफ्लाइज के लिए अट्रैक्शन थी, उसी वजह से उनके लिए साइंस का वर्ल्ड उनके सामने ओपन हुआ. Read and find out. How did a book become a turning point in Richard A. Bright's life? एक बुक ने किस तरह से रिचर्ड की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट का काम किया. हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, और उनकी मदर ने उनकी किस तरह से हेल्प की. At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. When Richard A. Bright was of 22 years, so he gave the scientific world, he excited the scientific world, he made the scientific world interested, or he made all the scientists interested by producing a theory on how cells work. कि उन्होंने एक नई थेरी दी साइंटिफिक वर्ल्ड में, साइंटिफिक वर्ल्ड को एक न्यू थेरी प्रोड्यूस करके दी कि सेल्स कैसे काम करते हैं, तो जिससे सारे के सारे साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, एक्साइटेड हो गए उनकी इस थेरी से. एंड इट इज़ ऑल्सो मैंशन दैट he was former Scout of the Year. That means when he was in school, he was Scout of the Year. Richard H. A. Bright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. So it is the name of a journal, Proceedings of the National Academy of Science. तो रिचर्ड ए ब्राइट ने अपने एक कॉलेज रूममेट के साथ मिलके इस थ्योरी को एक पब्लिश करवाया एक आर्टिकल में. और ये आर्टिकल कहाँ पब्लिश हुआ इस थ्योरी का? प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस नेम्ड जर्नल में, जो कि एक साइंटिफिक जर्नल है. It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students. और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि इस साइंटिफिक जर्नल ने, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और फेमस साइंटिफिक जर्नल था, कि पहली बार इस जर्नल ने कॉलेज स्टूडेंट्स के किसी काम को, इनके किसी वर्क को पब्लिश किया था. ये फर्स्ट टाइम हुआ था ऐसा. In sports, that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. और उनकी इस अचीवमेंट को रिचर्ड ए ब्राइट और जो उनका कॉलेज रूममेट था, उनकी इस अचीवमेंट को अगर हमें स्पोर्ट्स फील्ड में कंपेयर करना हुआ तो इट वाज लाइक हिटिंग अ होम रन whenever you hold first time, whenever you get first time, और बैटिंग whenever you do first time batting. सो अगर कोई इंसान फर्स्ट टाइम बैटिंग कर रहा है और फर्स्ट टाइम में ही वो सिक्सर लगा देता है, तो ये जो अचीवमेंट थी, अगर हम स्पोर्ट्स फील्ड के साथ कंपेयर करें तो ऐसी अचीवमेंट थी कि फर्स्ट टाइम कोई पर्सन खेलने लगा है लीग्स में एंड और फर्स्ट टाइम ही वो सिक्सर स्कोर करता है. होम रन यहाँ पे कहा गया है, ये बेसबॉल की बात की गई है. एक गेम है बेसबॉल जो कि क्रिकेट की तरह ही होती है, बट उसमें स्कोरिंग सिस्टम थोड़ा सा अलग रहता है. पूरा एक सर्कल को इन्होंने पूरे जो कॉर्नर्स होते हैं, जहाँ जहाँ कुछ लाइक होता है कि पूरा घूम के एक रन जो है वो स्कोर किया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ होम रन. तो जैसे हमारा क्रिकेट में होता है उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है, बट इट इज़ ऑल्सो लाइक अ क्रिकेट एंड बॉल गेम. तो क्रिकेट की जगह इनका जो बैट होता है वो थोड़ा सा अलग होता है. एंड लीग्स जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि ग्रुप ऑफ टीम्स प्लेइंग मैचेस अमंग देमसेल्व्स. तो कुछ एक ग्रुप्स होते हैं, टीम्स अपने आप बनाई होती हैं जो टीम्स स्पोर्ट्स में, तो उनके आपस में जो मैचेस चल रहे होते हैं वहाँ पे अगर कोई फर्स्ट टाइम बैट पकड़े और फर्स्ट टाइम ही बहुत ही अच्छा स्कोर करे रन, तो दैट अचीवमेंट इज़
same as the achievement of Richard A. Bright and his college roommate. Your first time, for Richard A. Bright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields. अब रिचर्ड ए ब्राइट के लिए ये सबसे पहली अचीवमेंट थी उनकी लंबी अचीवमेंट की जो लाइन थी, लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट, मतलब एक के बाद उनकी ये अचीवमेंट्स का ये जो सिलसिला था वो शुरू हो गया, और ये जो अचीवमेंट थी ये सबसे पहली अचीवमेंट थी इन द फील्ड ऑफ साइंस एज वेल एज इन अदर फील्ड्स. एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज. और ये सब कैसे शुरू हुआ था? इट स्टार्टेड अलॉन्ग विद बटरफ्लाइज ओनली. An only child, Bright grew up north of Reading, Pennsylvania. तो एक an only child मतलब उनका कोई भाई बहन नहीं था. He was a single child, only child of his parents. तो Bright grew up north of Reading. ये कहाँ पे पले बड़े हुए, इनकी जो ब्रिंग अप कहाँ पे हुई? रीडिंग नाम की एक सिटी में, जो कि पेंसिल्वेनिया की एक सिटी है, रीडिंग. नॉर्थ ऑफ रीडिंग मतलब नॉर्थ, इस सिटी की नॉर्थ साइड पे कहीं इनका घर था, तो वहाँ पे ये पले बड़े हुए. There was not much I could do there, he said. और वहाँ पे कुछ इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, मे बी कुछ इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था किसी चीज़ का, ऐसा रिचर्ड ए ब्राइट कह रहे हैं कि जो वो कर सकते हैं. I certainly couldn't play football or baseball with a team of one. अब वो अकेले थे, जैसे उनका कोई भाई बहन नहीं था, तो मे बी कोई प्लेमेट्स भी आसपास नहीं होंगे या कम होंगे. तो ही सेड कि आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, कि अकेला ही मैं फुटबॉल या बेसबॉल तो खेल नहीं सकता था. बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, दैट इज़ कलेक्ट थिंग्स. बट एक चीज़ थी जो वो कर सकते थे, वो था कोई चीज़ों को कलेक्ट करना. सो ही डिड, और उन्होंने ऐसा ही किया. एंड डिड ही एवर, और ऐसा कभी शायद ही पहले किया हो. Beginning in kindergarten, Bright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. तो जैसे ही उन्होंने किंडरगार्टन में एडमिशन ली, केजी स्टूडेंट थे जब वो बने, तो ही स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज with the same determination that has marked all his activities. मतलब सेम डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने इन बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू किया, और सेम डिटर्मिनेशन उनका बाकी की सारी एक्टिविटीज़ में भी देखा जा सकता है. He also collected rocks, fossils and coins. और साइड बाय साइड इन बटरफ्लाइज के अलावा और भी चीज़ें वो कलेक्ट करनी उन्होंने शुरू की. एंड दैट वर रॉक्स, फॉसिल्स मीन्स रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, एंड कॉइन्स. तो इस तरह की हैबिट्स बहुत सारे लोगों की होती है. कोई स्टैम्प्स कलेक्ट करता है, कोई कॉइन्स कलेक्ट करता है, कोई पिक्चर्स एंड कोई बुक्स कलेक्ट करता है. तो सेम वे ही वाज आल्सो having this habit of collecting rocks, fossils and coins. He became an eager astronomer too, sometimes stargazing all night. और वो एस्ट्रोनॉमी में भी इंटरेस्टेड हुए, और कई बार रात को समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल द नाइट, और कई बार पूरी पूरी रात ही स्टार्स की तरफ को गेज करते रहते थे, स्टार्स को ऑब्जर्व करते रहते थे. From the first, he had a driving curiosity along with a bright mind. अब उनकी क्वालिटीज़ बताई गई हैं. फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड, दैट मीन्स फ्रॉम द फर्स्ट मीन्स फर्स्ट क्लास की बात की जा रही है. तो जैसे ही वो फर्स्ट क्लास में थे, तब उन्होंने नोटिस किया कि उनकी एक ड्राइविंग क्यूरियोसिटी थी. ड्राइविंग क्यूरियोसिटी जो पुशिंग क्यूरियोसिटी जिसे हम बोल सकते हैं कि इंटरनल मोटिवेशन, उनके अंदर इंटरनल मोटिवेशन था आगे बढ़ने का, प्रोग्रेस करने का, कुछ बनने का, अलॉन्ग विद द ब्राइट माइंड. और साइड बाय साइड ही वॉज ऑल्सो गिफ्टेड विद ब्राइट माइंड. उनका माइंड भी बहुत शार्प था. He also had a mother who encouraged his interest in learning. और मोरोवर उनकी जो मदर थी वो भी बहुत encourage करने वाली थी, उनके इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने वाली थी, पुश करने वाली थी. And she took him on trips, brought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials and other equipment, and helped him in many other ways. तो उनकी मदर ने पूरा अपना अच्छा रोल निभाया इनको पुश करने में, इनको मोटिवेट करने में. तो वो क्या करती थी, उन्होंने किस तरह से इनकी हेल्प की, बाय टेकिंग हिम ऑन ट्रिप्स. उनको ट्रिप्स पे लेके जाया करती थी, टेलीस्कोप लेके दिया करती थी, माइक्रोस्कोप, कैमरास, और इनको इनके लिए जो स्टैंड्स होते हैं, माउंटिंग मटेरियल, इनके लिए, इन चीज़ों को होल्ड करने के लिए, एंड अदर इक्विपमेंट्स, एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज. और बहुत सारी बाकी चीज़ों में भी उनकी मदर ने इनकी हेल्प की, ताकि ये ज़िंदगी में कुछ करके दिखाए या फिर एक बड़ा इंसान बने. बिकॉज शी वॉज नॉन टू कि उनका जो माइंड है वो बहुत ही ब्राइट है.
I was his only companion until he started school, his mother said. Now she is saying, उसकी मदर जो है रिचर्ड एब्राइट की मदर, वो कह रही हैं कि I was his only companion, मैं सिर्फ इसकी अकेली फ्रेंड थी until he started school, जब तक इसने स्कूल स्टार्ट नहीं किया था तब तक मैं ही रिचर्ड एब्राइट की सिंगल फ्रेंड थी. आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, और जब उन्होंने स्कूल में एडमिशन ले ली तो उसके बाद उसको कंपनी देने के लिए इसके स्कूल फ्रेंड्स को भी वो घर पे ले आया करती थी. बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, पर रात को तो कोई जो बाकी फ्रेंड्स हैं वो इनके साथ नहीं रह सकते थे. सो शी इज़ सेइंग कि वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, कि हम दोनों ही इकट्ठे खेला करते थे या फिर जो भी कोई काम करना होता था इकट्ठे ही, हम रात के टाइम इकट्ठे ही रहते थे. रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड. सो रिची हियर रिची इज नेम्ड रिचर्ड एब्राइट, तो उनका शॉर्ट नेम है, निक नेम है रिची. तो मदर इज सेइंग कि रिची इनकी पूरी लाइफ बन गया था जब उसके फादर की डेथ होगी, व्हेन ही वाज ओनली इन थर्ड स्टैंडर्ड. She and her son spent almost every evening at the dining room table, और वो कह रहे हैं कि वो दोनों ऑलमोस्ट हर इवनिंग को वो दोनों डाइनिंग रूम के टेबल पे बैठा करते थे और कोई ना कोई काम किया करते थे इकट्ठे बैठ के. इफ़ वी डिडंट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम, नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स. और अगर कोई काम नहीं होता उनके साथ ऐसे करने के लिए, तो लाइक कोई गेम्स वगैरह नहीं होती, तो कुछ इंटरेस्टिंग वर्क नहीं होता, तो वो क्या करते, मदर कह रही है कि तो मैं उसके लिए कोई ना कोई काम डिस्कवर कर देती है. वो कोई ऐसा काम नहीं कि जो फिजिकल वर्क नहीं, रादर कुछ लर्निंग थिंग्स, कुछ लर्निंग वर्क उसके लिए मैं प्रोड्यूस कर देती थी, कोई ऐसी गेम्स या कुछ एनीथिंग एल्स. हिज मदर सेड लाइक दिस, ही लाइक्ड इट, ही वांटेड टू लर्न. अब हिज मदर हैज़ ऑलरेडी नोटिस कि जो उसकी ड्राइविंग क्यूरियोसिटी है, इंटरनली मोटिवेटेड है उनका जो बच्चा है. सो ही यूज्ड टू लाइक ऑल दीज लर्निंग थिंग्स बिकॉज ही वांटेड टू लर्न अ लॉट. उसकी लर्निंग क्यूरियोसिटी थी तो वो बहुत ज़्यादा लर्न करना चाहता था. सो ही बिकेम इंटरेस्टेड इन ऑल दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज. ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल. अब वो कह रही हैं कि वो हमेशा ही टॉप ग्रेड्स लेता था स्कूल में, हमेशा A+ रहता था. On everyday things he was just like every other kid, his mother said. बट अगर आम चीज़ों की बात की जाए तो everyday things, जो normal things होती हैं, उसमें वो एक normal child ही था. He was not an extraordinary kid, rather he was just an extraordinary in studies. By the time he was in second grade, Bright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. Now by the time he was in second grade, और जब तक रिचर्ड एब्राइट सेकंड ग्रेड में गए तब या फिर सेकंड ग्रेड में थे तब तक उन्होंने करीब 25 स्पीशीज़ जो थी बटरफ्लाइज की वो इकट्ठी कर ली थी, जो उनके होम टाउन में आसपास कहीं मिल सकती थी. Now here this is a list of all 25 kinds of butterflies or species of butterflies that he collected, and here it is the heading given is species and the subspecies of the butterflies collected in 6 weeks in Reading, Pennsylvania. तो ये 6 weeks में उन्होंने ये सारी जो 6 weeks का जो सीज़न होता था बटरफ्लाइज का वहाँ पे, तो उस सीज़न में जितनी वो 25 काइंड ऑफ स्पीशीज़ कलेक्ट कर सकते थे, उन्होंने रिचर्ड एब्राइट ने ये नेम्स की सारी स्पीशीज़ को कलेक्ट किया व्हेन ही वाज इन सेकेंड ग्रेड. That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. Now he said, that means Richard Ebright is saying कि शायद वो जो 25 kind of species जो मैंने butterflies की collect कर ली थी, तो उसके साथ that was the end of my butterfly collection, कि इसके साथ ही जो butterfly की collection का काम था वो मेरा शायद ख़त्म हो जाता, क्योंकि उसके अलावा कोई भी उनके होम टाउन में और कोई species जो थी butterfly की नहीं थी. But then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch 10. Monarch 10, yes. तो यहाँ पे ही saying कि जो उसके बाद जो उनकी मदर ने उनको एक बच्चों वाली बुक ला के दी, Travels of Monarch X. It is not 10, rather it is X I think. तो Travels of Monarch X, तो ये उन्होंने बटरफ्लाई वाली बुक उनकी मदर ने उनको ला के दी. And that book which told how monarch butterflies migrate to Central America opened the world of science to the eager young collector. और उस बुक को जब उन्होंने पढ़ा तो उसमें क्या फाउंड किया कि उसमें ये बताया गया था कि किस तरह से ये जो मोनार्क बटरफ्लाइज होती हैं वो माइग्रेट करती हैं सेंट्रल अमेरिका की तरफ
और इस चीज़ ने उनके साइंस के वर्ल्ड को उसके सामने जो इस यंग ईगर यंग कलेक्टर, मतलब इस एक्साइटेड यंग कलेक्टर मीन्स बटरफ्लाइज को जो कलेक्ट करते थे रिचर्ड एब्राइट, दिस ईगर यंग कलेक्टर इज टोल्ड अबाउट रिचर्ड एब्राइट कि वो यंग कलेक्टर थे, छोटी एज के थे, ईगर एक्साइटेड थे और कलेक्टर मीन्स बटरफ्लाइज को कलेक्ट करते थे। तो इस तरह से जब उन्होंने ये आइडिया, यहाँ पे उन्होंने इस बुक में ये पढ़ा कि किस तरह से ये मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट करती हैं सेंट्रल अमेरिका की तरफ, तो इस वजह से वो इस बटरफ्लाई के फील्ड में और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए। माइग्रेट मीन्स मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर अकॉर्डिंग टू दी सीजन। सीजन चेंज होने के कारण जैसे बहुत सारे बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो सेम वे बटरफ्लाइज भी माइग्रेट करती हैं अकॉर्डिंग टू दी चेंज ऑफ सीजन टुवर्ड्स सेंट्रल अमेरिका। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। अब इतना ही कि नहीं कि वो सेंट्रल अमेरिका की टुवर्ड्स के तरफ जो माइग्रेट करती हैं, ये चीज़ अकेली नहीं थी उनको इंटरेस्ट कर देने वाली। रादर एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड, कि एंड ऑफ द बुक में रीडर्स को इन्वाइट किया जाता था एक स्टडी में हेल्प करने के लिए कि जो बटरफ्लाई की माइग्रेशंस के रिलेटेड। अब वो किस तरह से हेल्प मांगी गई थी उस बुक के एंड में? दे वर आस्क्ड टू टैग butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of University of Toronto, Canada। अब ये इनविटेशन था डॉक्टर फ्रेडरिक ए यूकार्ट की तरफ से, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में एक रिसर्चर थे। तो दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च। तो वहाँ पे उन्होंने सब रीडर्स को इनवाइट किया किस चीज़ के लिए? जो भी इस बुक को पढ़ता था उसके एंड में उन्होंने लिखा कि कि वो जो भी बटरफ्लाइज को फाउंड करें उसके ऊपर टैग कर दें। टैग मीन्स कोई एक स्टिकर सा लगा दें, लाइक अ लेबल अटैच्ड टू समथिंग, इट इज़ नॉन एज टैगिंग। तो यहाँ पे एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि टैगिंग की हुई है, एक स्टिकर लगाया हुआ है बटरफ्लाई के ऊपर। तो डॉक्टर फ्रेडरिक यूकार्ट ने बोला कि जो भी इस बुक को पढ़ता है वो बटरफ्लाइज में इंटरेस्टेड है, ऑब्वियसली तभी वो बुक को पढ़ेगा। तो वो उस जो भी बटरफ्लाइज उनके पास हो जाओ वो पकड़ें या फिर जैसे भी तो वो बटरफ्लाइज को टैग कर दें, ये रिसर्च करने के लिए, इस एक रिसर्च में हेल्प करने के लिए। अब वो रिसर्च क्या थी? Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart and soon Ebright was attaching adhesive tags to wings of monarchs। तो ये जो रिसर्च थी वो ये था कि इन बटरफ्लाइज के ऊपर टैगिंग की गई थी, स्टिकर लगाया हुआ था, ये देखने के लिए कि कितनी जो बटरफ्लाइज हैं वो सेंट्रल अमेरिका की तरफ माइग्रेट करती हैं। कितनी बटरफ्लाइज टैग की हुई सेंट्रल अमेरिका, सॉरी नॉर्थ अमेरिका जो है वो जो भी हमने पढ़ा था पीछे, टुवर्ड्स सेंट्रल अमेरिका, आई थिंक इट वाज, यस, सेंट्रल अमेरिका की तरफ कितनी जो बटरफ्लाइज हैं वो माइग्रेट करती हैं। सो दिस वाज ओनली द पर्पस ऑफ टैगिंग दीज बटरफ्लाइज। तो रिचर्ड एब्राइट की जो मदर थी, उन्होंने डॉक्टर यूकार्ट को लिखा कि एब्राइट वाज आल्सो अटैचिंग लिटिल एडहेसिव लाइट एडहेसिव टैग्स टू विंग्स ऑफ मोनार्क्स की जो एब्राइट है ही वाज आल्सो अटैचिंग एडहेसिव टैग्स, वो भी स्टिकर्स लगा रहा है, टैगिंग कर रहा है इन मोनार्क्स के विंग्स पे। मोनार्क्स इज अ काइंड ऑफ बटरफ्लाइज, इट इज अ स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज। Anyone who found a tagged butterflies was asked to send the tag to Dr. Urquhart। तो जिस किसी को भी ये टैग्ड बटरफ्लाई मिलती थी, सो वो टैग जो था डॉक्टर यूकार्ट को भेजने के लिए कहा गया था। The butterfly collecting season around reading lasts 6 weeks in late summer। तो समर में ये सीज़न जो था जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग का जो सीज़न था वो सिर्फ 6 वीक्स के लिए ही तो होता था रीडिंग में। रीडिंग इज़ द नेम ऑफ सिटी एज वी हैव रेड। तो इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट पीरियड था 6 वीक्स का, तो अगर एक एक करके इन बटरफ्लाइज को कैच करने की कोशिश की जाए तो बहुत सारी बटरफ्लाइज नहीं पकड़ी जा सकती थी। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था एब्राइट के लिए कि उन्होंने सोचा कि बटरफ्लाइज को एक ग्रुप में, फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज मतलब बहुत ज़्यादा इकट्ठी बटरफ्लाइज को रेज करना चाहिए। रेज मीन्स ग्रो करना चाहिए। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, टेक हर एग्स एंड रेज
them in his basement through their life cycle from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. तब उन्होंने क्या किया है ब्राइट ने कि it was not easy to collect all kinds of these species or in this short period of time that is 6 weeks. तो उन्होंने क्या किया कि उनका नेक्स्ट स्टेप ये था कि उन्होंने एक फीमेल मोनाक्स को कलेक्ट करना शुरू किया और उनके एग्स लेके उनको ग्रो करना शुरू किया अपने घर की बेसमेंट में। और वो पूरे लाइफ साइकिल, इनका जो लाइफ साइकिल होता है, लाइक एक एग होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो एग को उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट किया, उसको इकट्ठे से रेज किया। लाइक पहले एग से केटरपिलर बनता है, केटरपिलर से प्यूपा और प्यूपा से फिर एक अडल्ट बटरफ्लाई। सो दीज आर दी स्टेजेस ऑफ अ बटरफ्लाई। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, पहले एग है, देन कैटरपिलर एंड देन chrysalis and then adult butterfly. So then he would tag the butterflies wings and let them go. और जब एक बार इनको रेज कर लिया, इनको ग्रो कर लिया इन बटरफ्लाइज को, तो उसके बाद वो जो लाइट एडहेसिव वाले जो टैग्स थे वो इनके विंग्स पे लगाते थे और इनको फ्री छोड़ देते थे कि और ये देखने के लिए कितनी जो बटरफ्लाइज हैं टैग की हुई सेंट्रल अमेरिका पहुंचती हैं और कितने जो टैग्स हैं वो डॉक्टर यूकार्ट के पास पहुंचते हैं। For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. और बहुत सारे सालों तक, काफ़ी सालों तक उन्होंने अपनी बेसमेंट में thousands of monarchs को रेज किया उनकी अलग अलग स्टेजेस में, एग से लेकर एडल्ट बटरफ्लाई तक। So number and kinds of butterflies collected in 6 weeks. और जो 6 weeks में उन्होंने जो जितनी kind of butterflies कितने नंबर इन बटरफ्लाइज के कलेक्ट किए, सो दीज आर गिवन हियर। अ स्पीशीज ऑफ 8, then 2, 8, then 3, then 1 and 1. So eventually I began to lose interest in tagging butterflies. और धीरे धीरे ही इज सेइंग कि ये जो अपना इंटरेस्ट था इन टैगिंग में, वो टैगिंग ऑफ बटरफ्लाइज, तो वो इंटरेस्ट वो खोने लगे धीरे धीरे, बिकॉज इट इज़ टेडियस एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक। क्योंकि ये बहुत ही टायरिंग वर्क था, बहुत ही हार्ड वर्क था, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था, थकाने वाला, एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक। और इसका जो फीडबैक था, रिजल्ट था, इन्फॉर्मेशन जो इससे बहुत ही ना के बराबर इन्फॉर्मेशन गेन होती थी कि सो इट वाज नॉट सो मच हेल्पफुल फॉर हिज रिसर्च। Bright said like this. In all the time I did it, he laughed. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured. अब जैसा कि हमने पढ़ा कि उन्होंने thousands of monarchs को रेज किया अपने घर की बेसमेंट में, एंड वो कह रहे हैं कि ऑल द टाइम आई डिड इट, जितना भी टाइम उन्होंने ये काम किया बटरफ्लाई कलेक्शन का, तो वो हंसकर कहते हैं कि सिर्फ 2 बटरफ्लाइज ही हैड टैग्ड, जो उन्होंने टैग की थी उनमें से सिर्फ 2 बटरफ्लाइज ही दोबारा कैप्चर की गई, दोबारा पकड़ी गई, एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड। और वो भी कहाँ से, सिर्फ 75 माइल्स तक की दूरी से, 75 माइल्स से आगे उन्होंने जो भी टैगिंग की थी बटरफ्लाई से, उसके बाद उनका कुछ अता पता नहीं था। So with this, part 1 of our chapter comes to an end. I hope you have well understood it, and please continue and see the next part also. Thank you and have a nice